قابض افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کی کرم میں سرحدی علاقے شورکو پر بلا اشتعال فائرنگ۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک فوج نے فتنہ الخوارج کو بھرپور جواب دیا۔ قابض افغان طالبان پوسٹوں کو شدید نقصان، پاک فوج کی جوابی کارروائی میں پوسٹوں پر آگ بھڑک اٹھی۔ افغان رجیم کے 6 ٹینک پوزیشن عملے سمیت تباہ۔ قابض افغان طالبان متعدد لاشیں پوسٹ پر چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ فورسز نے انتہائی مہارت سے چلتے ٹینک کو نشانہ بنا کر تباہ کیا۔ فتنہ الخوارج کے اہم کمانڈر کی ہلاکت کی اطلاعات، پوسٹیں خالی۔ پاک فوج نے پولسین پوسٹ کے مد مقابل خارجی ملک نعیم کے ٹریننگ کیمپ کو بھی نشانہ بنایا۔ کارروائی کے دوران فتنہ الخوارج کا ٹریننگ کیمپ مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ پاکستان کی بھرپور جوابی کارروائی، طالبان رجیم نے ایک بارڈر پوسٹ پر سفید جھنڈا لہرایا اور فرار ہو گئے۔ یہ ان پوسٹوں میں سے ایک ہے جس پہ 11/12 کی رات افغان طالبان جو ہندوستان کی جو سپانسرڈ فتنہ الخوارج ہے انہوں نے فزیکل ریڈ کی ناکام کوشش کی۔ الحمدللہ ہماری افواج اس نے انتہائی مستعد انداز میں دشمن کو فائر کا جواب دیا، دشمن کی 21 پوزیشنز پہ جا کے ہولڈ کیا اور اس پہ پاکستان کا جھنڈا لگایا۔ افغانستان سے دراندازی کی کوشش کیسے ناکام بنائی گئی؟ طالبان اور فتنہ الخوارج کا حملہ اور پاک فوج کا کرارا جواب۔ ARY نیوز کی ٹیم پہلے مارکے کی جگہ پہنچ گئی۔ بریگیڈیئر آصف نے بتایا دشمن نے ہفتے اور اتوار کی شب حملہ کیا، ہمارے جوان الرٹ تھے، منہ توڑ جواب دیا۔ 21 افغان چوکیوں پر قبضہ کر کے وہاں پاکستانی پرچم لہرایا، پاکستان پر حملوں میں استعمال لانچنگ پیڈ تباہ کیا۔ پاکستانی معیشت کے لیے بڑی خبر، IMF اور پاکستان کے درمیان قرض معاہدہ طے پا گیا۔ IMF پاکستان کو مزید $1.2 ارب فراہم کرے گا۔ IMF اعلامیے کے مطابق موجودہ 37 ماہ کے قرض پروگرام کی مد میں $1 ارب کی قسط منظور کیا گیا۔ موسمیاتی تبدیلیوں کے لیے $20 کروڑ کی قسط کی منظوری دی گئی۔ پاکستان نے سخت ترین معاشی اہداف حاصل کر کے IMF مشن کو مطمئن کیا۔ IMF کا مشن 24 ستمبر سے 8 اکتوبر تک پاکستان میں رہا۔ مشن کے پاکستان سے جانے کے بعد بھی چند نکات پر بات چیت ہوئی جو کامیاب رہی۔ فارمر CM کو بلایا تھا اپنے استعفے کی ویریفیکیشن کے لیے، اس میں کچھ چیزیں تھیں جس میں ڈاؤٹ تھا۔ انہوں نے کل فلور آف دی ہاؤس کھڑے ہو کے اپنا استعفیٰ دیا، اور نارمل یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی پارلیمنٹیرین یا کوئی کھڑے ہو کے فلور آف دی ہاؤس ریزائن کرتا ہے اور اس کو اسپیکر ایکسیپٹ کرتا ہے تو اس کو سمجھا جاتا ہے کہ آپ کا ریزائن ایکسیپٹ ہو چکا ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا آج شام 4 بجے نومنتخب وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی سے حلف لیں گے۔ فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں علی امین گنڈاپور نے اسمبلی فلور پر کہہ دیا کہ مستعفی ہو گیا ہوں تو اسے قبول کیا۔ وزیر اعلیٰ کا دوسرا استعفیٰ پہلے پہنچ گیا تھا، پہلا استعفیٰ تاخیر سے پہنچا۔ اس میں شکوک و شبہات تھے۔ پہلے استعفے سے متعلق پنڈورا باکس نہیں کھولنا چاہتا، 1-2 چیزیں ایسی تھیں جس پر بات چیت کرنا تھی۔ گورنر کراچی سے بلاول بھٹو کی ہدایت پر پشاور پہنچے۔ ایونٹ میں بلاول نے گورنر کو مخاطب کر کے کہا فیصل کریم کنڈی خیبر پختونخوا جائیں، جا کر آئین و قانون کی ذمہ داری پوری کریں۔ نئے وزیر اعلیٰ KP سے بغیر کسی تاخیر حلف لیا جائے۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے PTI کی درخواست پر فیصلہ سنا دیا۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ نے کہا گورنر KP نومنتخب وزیر اعلیٰ سے آج شام 4 بجے تک حلف لیں۔ گورنر ایسا نہیں کرتے تو اسپیکر صوبائی اسمبلی حلف لیں گے۔ علی امین گنڈاپور نے اسمبلی فلور پر کہا کہ انہوں نے استعفیٰ دیا ہے۔ KP اسمبلی نے نئے وزیر اعلیٰ کا انتخاب کیا۔ KP اسمبلی نے گزشتہ روز سہیل آفریدی کو نیا وزیر اعلیٰ منتخب کیا تھا۔ PTI نے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ خوشائن قرار دیا۔ اسد قیصر نے کہا جمہوریت اور قانون کی فتح ہوئی، عدالت نے انصاف کا ساتھ دیا۔ جنید اکبر نے کہا ہمیں اپنی عدالتوں پر یقین ہے، سیاسی لوگوں کا بھی شکریہ جو اس آئینی کام کا حصہ بنے۔ لاہور میں TLP کے دفتر پر چھاپے میں 2 کلو سونا، 50,000 کی بھارتی کرنسی برآمد۔ پولیس اور دیگر اداروں نے TLP دفتر سے برآمد سامان کی تفصیلات جاری کر دیں۔ ڈالر، یورو، پاؤنڈ اور ریال سمیت 72 کروڑ پاکستانی روپے شامل۔ دفتر سے پرائز بانڈ اور زیورات بھی ملے۔ سامان میں 69 قیمتی گھڑیاں،
सोने की चूड़ियां, ब्रेसलेट, हार, लॉकेट और अंगूठियां मिली। चांदी का ताज और 32 अंगूठियां भी बरामद की गईं। मुरीदके में एहतजाज के दौरान सोशल मीडिया पर इंतशार फैलाने वालों के खिलाफ पंजाब में क्रैकडाउन, 57 अफराद गिरफ्तार। कार्रवाइयां लाहौर, कसूर, कामोकी, गुजरांवाला और शेखुपुरा में की गईं। 109 शरपसंदों के व्हाट्सएप और फेसबुक अकाउंट्स ट्रेस कर लिए। पुलिस का कहना है 250 शरपसंदों की फहरिस्त मुरतब की जा चुकी है। मुरीदके में पुलिस इंस्पेक्टर की शहादत और अहलकारों के जख्मी होने का मुकदमा दर्ज। टीएलपी क़यादत समेत दर्जनों कारकुन नामजद। मुकदमे में दहशतगर्दी समेत 33 दफात शामिल। मुरीदके में तहरीक लब्बैक का पुरतशद्दुद एहतजाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमले। एक पुलिस अफसर शहीद और 1 दर्जन अहलकार जख्मी हुए। पुलिस ज़राए के मुताबिक इब्तदाई तौर पर इंतजामिया ने मुज़ाकरात किए। हुजूम ने पथराव किया। कीलों वाले डंडे, पेट्रोल बमों का इस्तेमाल किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स के मुताबिक फायरिंग में इस्तेमाल गोलियां छीने गए असलहे की थीं। पुलिस ने बड़े सानहे से बचने की कोशिश में आंसू गैस की शेलिंग और लाठीचार्ज किया। पुलिस पर हमला और कत्ल के मुकदमात। टीएलपी के 60 से जायद कारकुनान का जिस्मानी रिमांड मंजूर। पुलिस ने मुल्जिमान को एटीसी लाहौर में पेश किया था। साद रिजवी फरार हैं, जल्द कानून के कटहरे में लाएंगे। अगर उन्हें गोली लगी है तो हमें बताएं, इलाज कराएंगे। डीआईजी ऑपरेशंस फैसल कामरान कहते हैं पुलिस एहलकारों, एसएचओ को गोली लगेगी तो क्या रियासत खामोश रहेगी? सामने से फायरिंग होगी तो फोर्स क्या करेगी? टीएलपी कारकुनान के पास जो डंडे होते हैं उन पर कीलें लगी होती हैं। मुजाहिरीन के तशद्दुद से 60 पुलिस एहलकार मुस्तकिल तौर पर माजूर हो चुके हैं। एहतजाज शुरू होने से पहले टीएलपी से बात की, उन्हें समझाया। उन्हें कहा फलस्तीन के लिए रैली निकालनी है तो निकालें, मगर वो बज़िद थे, एहतजाजी मार्च लेकर जाएंगे। ये हमेशा झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मौसर किरदार का एक बार फिर एतराफ़। पाकिस्तान 2026 से 3 साल की मुद्दत के लिए इंसानी हुकूक काउंसिल का मेंबर मुंतखब। पाकिस्तान समेत 14 ममालिक अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल के नए रुकन बन गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार कहते हैं पाकिस्तान की कामयाबी आलमी सतह पर इंसानी हुकूक के फ़रोग़ का एतराफ़ है। गाज़ा अमन सरबराही इजलास के दौरान पाकिस्तान को अहम मकाम हासिल रहा। पाकिस्तान को बड़ी सिफारती कामयाबी मिली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह गाज़ा में नस्लकुशी का फौरी खात्मा था। पाकिस्तान और बरादर ममालिक ने गाज़ा के मसले पर मुश्तरका मौक़िफ़ अपनाया। सदर ट्रंप का शुक्रिया, उम्मीद है वो गाज़ा में मज़ालिम रोकने का वादा पूरा करेंगे। फ़लस्तीनी अवाम की आज़ादी, वक़ार और खुशहाली पाकिस्तान की बुनियादी तरजीह है। तमाम 20 मग़वी इसराइली वापस आ गए हैं और बेहतर है, एक बड़ा बोझ हट गया, लेकिन काम अभी मुकम्मल नहीं हुआ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं हलाक शुदगान की बाक़ियात की वापसी वादे के मुताबिक नहीं हुई। दूसरा मरहला शुरू होने वाला है। मिस्र ने गाज़ा के इंतजाम के लिए 15 टेक्नोक्रेट्स के नामों का ऐलान कर दिया। इसराइल और हमास समेत तमाम फ़लस्तीनी धड़ों की मुशावरत से फहरिस्त को हतमी शक्ल दी गई। मिस्री वज़ीर ख़ारजा कहते हैं टीम गाज़ा में अवामी उमूर और रोज़मर्रा ज़िंदगी संभालेगी। हमास का अबूरी दौर में कोई इंतजामी किरदार नहीं होगा, सिर्फ ताउन फराहम करेगी। अमन मुआहिदे के बाद फ़लस्तीनियों की घरों को वापसी, कैदियों के घर पहुंचने पर जज्बाती मनाजिर। किसी ने अपनी माँ के कदम चूमे तो कोई अपने बच्चों से लिपट कर रो पड़ा। 20 साल बाद पहली बार बाप से मिलने वाली बेटी फूट फूट कर रोई। जंग बंदी और कैदियों की रिहाई के बाद गाज़ा में फ़लस्तीनी अमन का जश्न मना रहे हैं। जिंदगी मामूल पर आने लगी। खान यूनिस में खंडरात के दरमियान बाजार सज गया, लोगों की चहल पहल। फ़लस्तीनी अपने तबाह घरों को दोबारा तामीर करने में मसरूफ़ है। बच्चे मलबे से खेल रहे हैं और खुशियां ढूंढ रहे हैं। शुमाली गाज़ा का एक रिहायशी वापसी पर अपना घर सही सलामत देखकर जज्बात पर काबू न रख सका। इसराइल 2 साल तक गाज़ा पर आग और बारूद बरसाता रहा। 22 लाख आबादी वाला शहर
खंडर बन गया। अमन मुआहिदे के अगले रोज इसराइल की सफाकियत 9 फलस्तीनी शहीद कर दिए। शुजाइया कैंप के अतराफ फायरिंग से 5 शहीद। इसराइली फौज ने इल्जाम लगाया निशाना बनाए गए फलस्तीनी फौजियों के करीब आने की कोशिश कर रहे थे। इनरवा चीफ का कहना है इसराइल अब भी गाजा में इमदाद रोक रहा है। गाजा में इमदादी सामान इसराइली पाबंदी के बायस दाखिल नहीं हो पा रहा। इसराइल ने यरगमालियों की लाशें हवाले करने के लिए हमास को गुज़िश्ता रात तक की मोहलत दी थी। इसराइली वज़ीर दिफा का कहना है वक्त बहुत कम है। आज रात तक अगर कोई पेशरफ ना हुई तो इसराइल अपने तमाम इख्तियारात इस्तेमाल करेगा। हमास अब तक 28 में से 4 लाशें इसराइल के हवाले कर चुकी है। हमास का कहना है बाकी 24 लाशों को निकालने में वक्त लग सकता है। साबिक वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने इसराइल की नीयत पर शक का इजहार कर दिया। कहा तारीख में सबसे ज्यादा जंगबंदी तोड़ने वाला मुल्क इसराइल रहा है। गाजा सीज फायर पर लोगों में डर, खौफ और बेचैनी है कि कहीं इस बार भी कोई धोखा न दिया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को सदर ट्रंप ने खिताब करने की दावत दी। पूरे मुल्क ने उनका खिताब सुना होगा, पसंद भी आया होगा। रजा रबानी के नावल की तकरीब में रोनुमाई से खिताब में कहा सिंध का मुकाबला किसी सूबे या शहर से नहीं, हम तो दुनिया से पाक जनूबी अफ्रीका पहला टेस्ट फैसला कुन मरहले में दाखिल। चौथे रोज पाकिस्तान को जीत के लिए 8 विकेटें पर प्रोटियाज को 226 रन दरकार। तीसरे दिन का खेल भी स्पिनर्स के नाम रहा। दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तानी बल्लेबाज बड़ा स्कोर करने में नाकाम। पूरी टीम 167 रन पर ढेर हुई। बाबर 42, अब्दुल्ला शफीक 41 और सऊद शकील 38 रन बनाकर नुमाया रहे। पाकिस्तान की आखिरी 6 विकेटें सिर्फ 17 रन पर गिरी। मुत्थुस्वामी ने 5, सेमोन हार्मर ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। तीसरे दिन खेल के खिताम पर जनूबी अफ्रीका के 2 खिलाड़ी आउट हैं। नुमान अली ने कप्तान मार्करम और मिल्डर को चाल चलता किया। जिस पोजीशन में आ गए उसके जिम्मेदार हम खुद हैं। हेड कोच अजहर महमूद की बल्लेबाजों की शॉट सिलेक्शन पर तनकीद। कहा गेंद ब्रेक जरूर हुई लेकिन विकेटें गिरने में पिच का कोई किरदार नहीं था। सऊद शकील ने चाय के वक्फे से पहले गैर जरूरी शॉट खेला जिससे दबाव आया। पिच की सूरत हाल देखकर पुरुमीद है हदफ का दिफा कर लेंगे। सुफियान खान के गोल ने भारत के खिलाफ मैच बचा लिया। सुल्तान ऑफ जौहर हॉकी कप में रिवायती हरीफों का मुकाबला 3-3 से बराबर हो गया। कौमी टीम ने पहले 2-0 की बढ़तरी हासिल की, फिर भारत ने कम बैक करके मुकाबला 3-2 कर दिया। 55वें मिनट में सुफियान खान ने गेंद जाल में पहुंचाई। दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट मिल गया। भारत का निशाना सिर्फ जेंटलमैन गेम को नुकसान पहुंचाना। क्रिकेट के अलावा बाकी किसी मैदान में कोई रोक टोक नहीं। हॉकी मैच से पहले तरानों के बाद दोनों मुल्कों के खिलाड़ियों ने रिवायती अंदाज में तालियां मारी। AFC एशियन फुटबॉल क्वालिफायर्स में पाक अफगान मैच 1-1 गोल से बराबर कुवैत में खेले गए। ओवे मरहले में अफगानिस्तान के 5वें मिनट में खाता खोला। पाकिस्तान के एतजाज हुसैन ने 29वें मिनट में मुकाबला बराबर कर दिया। दूसरे हाफ में कोई टीम गोल नहीं कर सकी। और कतर ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफाई कर लिया। जासिम बिन हमद स्टेडियम में मुत्तहिदा अरब अमारात को 2-1 से शिकस्त दी। बोअलीम खोकी और पेड्रो ने 1-1 गोल किया। कतर की वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स ग्रुप ने ए में टॉप पोजीशन हासिल की।